Morning, students. This is Mr. Titus from Salem classes. Students, enjoyable time. After few days, again, I met you through this video. It is my privilege. You are commenting me. At the same, trying to help you according to your comments. Today morning, somebody commented me that he needs the exercise of chapter number 4.2. Don't be so hard on pigs. The name of the chapter is Don't Be So Hard on Pigs. This is chapter number 4.2. Ask for class communicative English. So let's begin. There are three exercises. You must see page number 111. Question answer already done. If yet you haven't seen, so you can open my channel and also playlist. There you can see communicative English class. You put that you can see all my previous video. If newly you are watching, so it is my small request. You have to subscribe it at the same. You hit the bell icon also. So let's begin today's video class. This is fill in the blanks. You may see the headline. On the best of your study of the lesson, complete these sentences. Okay, so there are almost six fill in the blanks or completing of sentences. So according my study and according my knowledge, I prepared it. So see the be enjoy. So number one, pork. It's dash. What is pork? Pork is meat of pig. Okay. Then second is there. Hogs are dash. Hogs are male pigs. Okay. The pigs, male pigs are called hogs. जो आधा शोर होते हैं उस कहा जाता है। pork जो है वो pig का मीट होता मांस होता है। So pigs are made fat for dash. तो उसका आंसर है eating called hogs. ओके, इसका जो गैप है वो इस प्रकार भर सकते हैं। पिग्स आर मेड फॉर, जो पिग्स है उसको फैट बनाया जाता है जिसको ईटिंग, जिसको हॉग्स कहा जाता है। यानी पहले उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। ओके, हॉग्स क्या चीज़ होता है। देन यू मे पिग्स आर इन ए बैड लाइट। इंग्लिश में जो पिग्स का जो शब्द को, जो फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता है, ये बैड लाइट से ही है। तो मतलब इसको एक ढंग की भाषा से नहीं बोली जाती। एक क्या कह सकते, तू सुअर का जैसा है, तू पिग का जैसा है, ऐसे जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं किसी को, मतलब इस प्रकार इंसल्ट करके बोल लिए, शब्द में इसे इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5 फॉर रूट्स। देर पिग जो है रूट्स के लिए कैसे होता है, किसके सहारे, उस टास्क होते हैं, हाथ होते हैं, सिर्फ उसके भी सटा होते हैं और उसी के सहारे वो करता है, मिट्टियों को खोदता है और उससे रूट्स वगैरह लेकर के अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है। इन डेनमार्क पिग्स हैव टू प्रोवाइड शावर फॉर देयर पिग्स। अगर डेनमार्क के बारे में हम देखें तो हम पेज नंबर 110 में इसको देखते हैं। आखिरी पैराग्राफ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे शावर प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड शावर फॉर देयर पिग। जो फार्म में जो रखे जाते हैं पिग्स, है ना, उस किया जाता है, शावर के द्वारा नहलवाया जाता है। ये चीज़ आप पेज नंबर 110 में भी अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हम आगे की जो मतलब पेज नंबर है, पेज नंबर 100
12 में हम चलते हैं। This is page number 113. So this is also to the correct phrases to complete each sentence. Okay, ये सेंटेंस को ऐसे समझना मुश्किल है. So we should have to follow dictionary. If we follow dictionary, then only we can understand these phrases. So I also searched dictionary and what the meaning I got from the dictionary. According to that way, I have prepared it. So I think it will be very helpful for you. Number one, he hopes to win the election this time. Yes, and the pigs might fly. उसका मतलब उसका जीतना तय है. ठीक है, उसका जीतना तय है. फिर उसके बाद second, the pizza was so tasty that we picked out on it. मतलब picked out on it का मतलब ये होता है कि अगर कोई टेस्टी फूड होता है तो हम कितने लालच के साथ इसको खा जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, होल गोइंग while going to Delhi, I took the wrong road and then had a pick off day. मतलब जब दिल्ली गया, जा रहा था, जाते वक्त मैंने क्या एक गलत रास्ता को, गलत मार्ग को चुन लिया और जिसके चलते मैं खुद मुसीबत में, डिफिकल्ट में फंस गया. ए पिक ऑफ डे का मतलब है मुश्किल दिन, डिफिकल्ट डे. He is very serious about his job. If you ask him to do something, he always goes the whole hog. मतलब यदि आपकी जॉब के ऊपर वो बहुत ही सीरियस रहता है, यदि उसको कुछ कहा जाता है तो बिल्कुल बड़े ध्यानपूर्वक वो क्या करता है, उसे कर लेता है. अब हम देखते हैं, ही इज सच ए पिग हेडेड फेलो दैट ही वोंट लिसन टू एनी आर्गूमेंट. मतलब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो व्यक्ति दूसरे का आर्गूमेंट, सलाह स्वीकार करते, वो कहते हैं मैं जो हूँ मैं राइट हूँ. तो इसी प्रकार व्यक्ति को पिग हेडेड कहा जाता है. सम ड्राइवर्स डैश एंड डोंट गिव यू द वे इवन इफ यू कीप ऑन ब्लोइंग हॉर्न्स. ऐसे लोगों को हॉग द रोड कहा जाता है, यानी वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आगे किसी को जाने नहीं देते हैं. 7 नंबर, आई रेफ्यूज टू लिसन टू हिज आर्गूमेंट बिकॉज इट वॉज ऑल हॉगवॉश. हॉगवॉश का मतलब नॉनसेंस. यहाँ पे कहा जाता है कि मतलब वो आर्गूमेंट नॉनसेंस था, इसलिए मुझे सुनने में कोई रुचि नहीं हुआ, मैं पसंद नहीं किया. नेक्स्ट, बिफोर मेकिंग एनी कॉस्टली परचेज you must have an idea of what you are going to buy or you will buy a pig in a pod. यानी जब कभी कोई चीज़ को परचेस करने के लिए आप जाते हैं तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चीज़ परचेस करेंगे, क्या चीज़ खरीदेंगे. अन्यथा आपका झोला जो है खाली हो जाएगा. अननेसेसरीली जो चीज़ ज़रूरी नहीं होगा वही चीज़ को आप लेकर के आ जाएंगे और वहाँ पे आपका पॉकेट खाली हो जाएगा. तो यही है उसका अर्थ. तो मुझे उम्मीद है कि जो तीनों के तीनों पार्ट है आपको विशेष रूप से समझ में आ गया होगा. अगर इफ़ यू आर हैप्पी बाय दिस एक्सरसाइज, सो you can share it to your friends and relatives. And if you have any query and any request, so please comment me that I can make for you such kind of videos or lecture. Thank you. May God bless you.
तो ये है पेज नंबर 112. इसमें भी 8 exercises. There are also 8 exercises. Choose the best answer for each questions. Okay, so I have studied it very clearly and almost 3-4 times. Then I made it. So that is why there is no any confusion. So let's start. Most phrases using the word hug और pig, है ना, जो फ्रेज है वाक्य खंड होता है हग और पिग, ये किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्पेशली आर इंसल्टिंग टू हग्स. ओके, ये एक हग या पिग को इंसल्ट के शब्द के तौर पर इसको इस्तेमाल किए जाते हैं. फिर उसके बाद समवन हु इट्स लाइक अ हग इज प्रोबेबली, जो व्यक्ति हग की तरह यानी शोर की तरह भोजन करता है, ज़्यादा खाता है, उसकी हालत क्या होगी? जाहिर सी बात है, बी ऑप्शन में लिखा है ओवर वेट, मतलब उसका वजन ज़्यादा बढ़ेगा, मोटापा ज़्यादा बढ़ेगा. द इंग्लिश लैंग्वेज इज अनफेयर टू हॉग्स. ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अनफेयर के हिसाब से हग शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आपने पेज नंबर जो 109 को पढ़ा होगा, उसमें लिखा है पिग टू ईट लाइक ए पिग, डोंट बी ए पिग, as fat as a pig, as dirty as a pig, as crooked as a pig's tail. ये सभी शब्द जो है इंसल्ट करने लायक के शब्द को द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी के द्वारा ये समझा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज इज अनफेयर टू हॉग्स. ओके, next third number question is there. What has been said about the pigs getting dirty? तो पिग जो डर्टी होता है इसका क्या कारण हो सकता है? नंबर 1, इसमें 3 ऑप्शन है. देर आर 3 ऑप्शंस A, B and C. B ऑप्शन इज राइट. पिग्स लाइक टू गेट डर्टी इन ऑर्डर टू ईट. अगर इसका आंसर आपको देखना है तो आप जैसे कि पेज नंबर 110 का जो बीच का पैराग्राफ है, इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है. देयर इज नो डाउट दैट समथिंग पिग्स डू गेट रादर डर्टी व्हाइल ईटिंग. ओके, मतलब अपने खाना खाने के लिए खाते समय वो डर्टी हो जाते हैं. व्हाट डज द डैनिश गवर्नमेंट अपियर टू रिकॉग्नाइज? डैनिश गवर्नमेंट किस बात का रिकॉग्नाइज किया था, वो भी हम इसी पेज नंबर 110 में देख सकते हैं, है ना. पिग लव्स टू कीप देमसेल्फ कूल as well as clean like any other animals. ओके, ये शब्द जो है डैनिश गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, यानी ऑब्जर्व किया गया था. तो हॉग्स डजंट लाइक टू बी हॉट एंड डर्टी. पहली बात तो है हॉग्स जो है वो किसी भी तरह से हॉट में रहना पसंद नहीं करते, मतलब नहीं रह पाते हैं. तो अपने आप को कूल करने के लिए वो पानी के सहारा लेते हैं. तो हो सकता है वो पानी और कीचड़ ये उनका शरीर को क्या करता है, ठंडा देता है. तो इसीलिए डैनिश गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न दिया है, फार्मर को ये आदेश दिया है कि वो क्या करे कि अपना जो फार्म जो पिग्स है उनके लिए शावर का इस्तेमाल करें. सो अकॉर्डिंग टू दैट वे दिस C ऑप्शन इज करेक्ट. Then you can see there 6. What overall idea do you get from this lesson? So here is also you can use as per your proper answer. This is C. It is shows how much people benefit from hogs. So when we read page number 109,
we may see that almost all part, okay, almost all part we use for we use the body part of the pig. Pigs are kept on farm and made fat for eating are called husks. Different part of a pig's body are used to make brushes, glue, leather and salt. तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर पेज नंबर 109 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े और साथ ही साथ अगर हम पेज नंबर 111 का जो ऊपर वाले कुछ लाइनों को पढ़े, है ना, वी मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दिस इनोसेंट एनिमल्स, वी डोंट अलाउ इवन ए सिंगल पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू गो वेस्ट। मतलब उनके बॉडी का कोई भी पार्ट को हम नष्ट करने नहीं देते। तो इसी स्थिति पर हम उसके जो हर पार्ट से, बॉडी का हर पार्ट से हमें बेनिफिट मिलता है। नंबर 7, विच ऑफ दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस लेसन। इस लेसन के आधार पर कौन सा सही है। इसमें भी 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से ईच पार्ट ऑफ द हॉक्स बॉडी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर यूज। उसके जो बॉडी पार्ट है वो सभी अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से जो तेल निकलते हैं उसको हम ग्लू के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके शरीर में जो बाल निकलते हैं उसको ब्रश के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि उसका जो टस्क है उसके द्वारा जो कम वगैरह बनाया जाता है और उसका मीट को पोर्क के रूप में खाया जाता है। सो वी यूज ऑल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी and that is for different purpose and they have particular uses. Suppose we think about its hair that is used for brush and suppose we think about its oil that is used for glue, and suppose we think about its meat that is used as a pork, and many other things are being used. Okay, now uh, next last question, that is question number 8. So what do you think the main idea of the lesson is? इस लेसन का मेन आइडिया क्या है? सो वेरी सीधा साधा बात है, वी शुड स्टॉप सेइंग डेरोगेटरी थिंग्स अबाउट हॉक्स। हम हॉक्स के बारे में जितने भी मतलब गलत गलत बोल देते हैं वो सभी चीज़ों का हमको क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। तो अब हम अभी फिर चलते हैं पेज नंबर 130 की तरफ।